Today, I'll discuss about topical agents part 2. This is followed by the part 1 which the video lecture for which I has already uploaded. So let's start about topical agents. इसके पहले वाले लेक्चर में आपको समराइज किया है क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट्स. As per the syllabus of GPAT, now I want to summarize all the classes of topical agents into three main parts. These three main parts are protective and adsorbents, antimicrobials, and astringents. The most important example of protectives is talc, commonly known as talcum powder, which is present in our houses. It is also known as French chalk or purified talc. Coming to the chemical formula of talc. क्या है chemically talc क्या है? The formula is written in front of you. It is hydrous silicate mineral. Talc is a hydrous silicate mineral which is composed of magnesium, silicon and oxygen with water. Talc consists of magnesium, oxides of silicates and water. This is the chemical formula of talc, Mg6Si2O5OH4. How will you identify which is like एक powder आपके सामने? How can you identify कि ये talc है? Identifying criteria is common for nearly common procedures हम follow करते हैं to identify what is the acidity of the substance और alkalinity of substance, उसका pH क्या है, litmus paper पे क्या color change आ रहा है. Talc is neutral at all. उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, कलर, ओडर, टेस्ट, क्रिटीनेस, टेक्सचर किस तरह से चेंज हो रहा है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, किस अमाउंट में है, एसिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, द कंटेंट ऑफ आयरन, कार्बोनेट्स, लॉस ऑन ड्राइंग, organic compounds and chlorides. These are the common identification criteria which should be followed to identify the talc. Storage. Talc, as I told you, litmus paper पे कोई भी effect नहीं दे रहा है. It means it is a neutral substance. Talc inert substance है. एसिड और बेस और किसी और केमिकल का भी talc पर कोई effect नहीं होता है and it is stored in a well closed container. Now, talking about the identification test for talc. As we know, talc is a very important protective agent. How will you identify and what are the various identification tests? The first is physical examination. When we examine talc under microscope, what we see very small, fine, platy particles, and the size of these particles should not exceed 50 micrometers. जो भी हमारे talc के maximum of the particles है, उनकी size 50 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होती है. They are really fine particles. And जब हम इन्हें methylene blue solution से stain करते हैं, the solution is of methylene blue, 0.1% weight by volume, prepared in 95% alcohol. अगर मेथाइलिन ब्लू सोल्यूशन 0.1% वेट बाय वॉल्यूम मेथाइलिन ब्लू सोल्यूशन को से स्टेन करेंगे तो कोई भी स्टेन नहीं मिलेगा. दे आर नॉट नोटेबली स्टेन्ड बाय दीज मेथाइलिन ब्लू सोल्यूशंस. द सेकंड इज we need to boil talc in presence of potassium nitrate and sodium carbonate. Sodium carbonate is anhydrous of nature. Talc को potassium nitrate and sodium carbonate plus water. All the quantities are written in this slide. इसकी प्रेजेंस में बॉईल करना है. बॉईल करने के बाद जब प्रॉपर बॉइलिंग हो जाए सफिशिएंट टाइम तक उसे फिल्टर करिए. टू दी फिल्ट्रेट अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड इसको ऐड करना है. अगेन फिल्टर इट एंड ऐड डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. यू विल गेट अ वाइट precipitate. This is the second identification test for talc. One is chemical identification, the first one is physical identification, organoleptic identification. Purity. Talking about the test for purity, it is tested for acid soluble substances, water soluble substances, even water insoluble substances, for the presence of phosphates, for the presence of soluble iron salts, presence of carbonates and loss on drying. All these tests are written in IP Indian Pharmacopoeia 2007. तो जो भी हमारी स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए talc का टेस्ट, talc की purity test and identification test both can be performed. Use. Where we can use talc. So as we know,
most important use of talc is in cosmetic preparation as dusting powder. Second, along with the talc के साथ साथ हम उसमें किसी भी पाउडर या किसी भी प्रिपरेशन में जिंक ऑक्साइड, स्टार्च, बोरिक एसिड, ये चीजें, ये इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते हैं। तो टाल्क उनके लिए एक डायलुएंट का काम करता है, साथ ही साथ ऐसा डायलुएंट है जो स्किन पर प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करे। I had written here boric acid, तो I want to add one line. Boric acid जो है normally talcum powder for baby powders में नहीं डालते हैं, and baby powders are sterilized, they are sterile in nature also, and the particles of the powder for baby powder really very fine, they are very fine, कोई भी ग्लिटीनेस नहीं आनी चाहिए अगर बेबी पाउडर बना रहे हैं। फिर से बताते हैं आपको, बिकॉज हम टॉपिकल प्रिपरेशन की बात करते हैं, ऑल्दो इट इज द पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग हियर। बेबी पाउडर में एक तो बोरैक्स, बोरिक एसिड नहीं होगा, सेकेंडली वो स्टेरिलाइज होगा, थर्ड पार्टिकल की साइज और फाइन होती है, जो नॉर्मल एडल्ट्स के लिए बन रहा है ना उसके कंपैरिजन में भी और फाइन होती है। नेक्स्ट यूज ऑफ टाल्क इज इट इज यूज्ड एज फिल्टरिंग मीडिया, फिल्टर एड की तरह यूज करते हैं। लिक्विड्स को क्लैरिफाई करते वक्त फिल्टर एड की तरह, ये फिल्टर मीडिया की तरह यूज कर रहे हैं। और एलिक्सर्स के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिंग मीडिया भी है, जिसमें ये डिस्पर्स्ड फेस को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम रोल प्ले करता है। And the last is it is used as lubricant and glidant. Glidant जो टैबलेट के ग्रेन्यूल्स की या पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करे, तो ये ग्लाइडेंट की तरह भी यूज होता है इन टैबलेटिंग और ग्रेनुलेटिंग प्रिपरेशंस। This is the second example of protective and absorbent. Second, zinc oxide. Preparation क्या है जिंक ऑक्साइड की? जिंक ऑक्साइड is prepared by burning zinc metal in air. क्योंकि ऑक्साइड है ये, तो ऑब्वियसली एयर में जिंक मेटल को बर्न करके हम जिंक ऑक्साइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। और जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करता है वाटर से, तो इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। जिंक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी के साथ साथ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी है, तो ये प्रोटेक्टिव एज वेल एज एस्ट्रिंजेंट नेचर के लिए यूज होता है। Zinc oxide is mild antiseptic also. It has astringent behavior also. और normally ointments में या dusting powder में zinc oxide एक main ingredient की तरह use हो रहा है। और eczema, ringworm, pruritus, psoriasis, इन सारी disease condition, skin disorders में हम zinc oxide को as a medicinal agent use करते हैं। Plasters जो हमारी लगते हैं like during जो आप प्लास्टर एक नॉर्मल हार्ड प्लास्टर्स लगाते हो, उसका भी मेन इंग्रेडिएंट है जिंक ऑक्साइड। स्टिफनेस प्रोवाइड करने के साथ साथ एज आई टोल्ड यू, ये एंटीसेप्टिक बिहेवियर भी दे रहा है, दैट्स व्हाई जिंक ऑक्साइड प्लास्टर प्रिपरेशन का एक मेन इंग्रेडिएंट है। केमिकल फॉर्मूला इज ZnO। जिंक ऑक्साइड पेस्ट अगर बनाना है तो फॉर्मूला इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। जिंक ऑक्साइड कंटेन्स अगेन along with the starch and white soft paraffin you can prepare zinc oxide paste. Now identification test for zinc oxide. The first test is just heat zinc oxide. जैसे ही जिंक ऑक्साइड को हम स्ट्रांगली हीट करेंगे सफिशिएंट टाइम के लिए, इट बिकम्स येलो इन कलर, एंड अगेन व्हेन वी कूल इट येलो कलर डिसअपियर्स, मींस हीट प्रोवाइड करने पे कलर चेंज हो रहा है, एंड इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे ही हीट हम हटा देते हैं, जिंक ऑक्साइड वापस अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आ रहा है, इसका ये येलो कलर डिसअपियर हो जाता है। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, केमिकल टेस्ट। जिंक ऑक्साइड को डिसॉल्व करना है वाटर में। द क्वांटिटीज आर रिटन। 0.1 ग्राम जिंक ऑक्साइड को 5 ml वाटर में डिसॉल्व करिए। डिसॉल्व करने के बाद, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाने के बाद, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और 0.1% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट ऐड करना है, प्लस 2 ml ऑफ अमोनियम मर्क्यूरी थायोसाइनेट ऐड करना है। अगेन द थ्री इंग्रेडिएंट्स, वन इज सल्फ्यूरिक एसिड जो एसिडिफाई कर रहा है, सेकेंड इज क्यूप्रिक सल्फेट एंड द थर्ड इज अमोनियम मर्क्यूरी थायोसाइनेट। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड करो, थोड़ी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए टाइम प्रोवाइड करना है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन होगा, एंड व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अ वॉलेट प्रेसिपिटेट। अगर वॉलेट प्रेसिपिटेट आता है, इट इंडिकेट्स द कंपाउंड इज जिंक ऑक्साइड। द थर्ड टेस्ट, अगेन डिसॉल्व जिंक ऑक्साइड इन वाटर। इस सोल्यूशन में पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करना है,
पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करते ही यू विल गेट अ वाइट प्रेसिपिटेट, और ये वाइट प्रेसिपिटेट एसिड इनसॉलेबल है, मतलब अगर इसमें हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो इसकी ये जो है वाइट प्रेसिपिटेट इट विल अगेन रिमेन्स इनसॉलेबल इन डाइल्यूट HCl. These are the three identification tests for zinc oxide. Now the next class of protectives is zinc stearate. Formula is C17H35CO twice zinc. क्या है जिंक स्टेरेट? जिंक स्टेरेट स्टेरिक एसिड का जिंक सॉल्ट. ऑब्वियसली इट हैज अ ग्रीसी अपीयरेंस. स्टेरिक एसिड वैक्सी या फैटी एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट से मिलता है हमको स्टेरिक एसिड, उसका जिंक सॉल्ट है जिंक स्टेरेट, और एक ग्रीसी अपीयरेंस देता है. जिंक स्टेरेट और मैग्नीशियम स्टेरेट भी एक लुब्रिकेंट की तरह टैबलेट बनाने के वक्त भी यूज होता है. सो नाउ जिंक स्टेरेट या जिंक पामिटेट, ये सारी आपकी प्रिपरेशंस यूज होती हैं. प्रॉपर्टी क्या है? ऑब्वियसली इट इज फाइन. कलर क्या है? फाइन वाइट, बल्कि अमॉर्फस स्पॉट. इट इज अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन नेचर का नहीं है, एंड फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस. एक फेंट या कैरेक्टरिस्टिक ओडर है. टेस्टलेस, प्रैक्टिकली इट इज टेस्टलेस. एंड फैटी कंटेंट है, तो ऑब्वियसली इट इज इनसॉलेबल, प्रैक्टिकली इनसॉलेबल इन वाटर, इन ethanol and in ether. Chemical property में we can say it is neutral to litmus paper. most litmus paper के अगेंस्ट ये न्यूट्रल है, तो इसका 7 के आसपास pH आएगा. एसिडिक या बेसिक बिहेवियर कैरी नहीं कर रहा है. एयर में एक्सपोज होने पर, एयर की प्रेजेंस में आने पर इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जिंक स्टेरेट. इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इस तरह से: जिंक स्टेरेट 5 ग्राम, उसमें 50 ml ऑफ ईथर और 40 ml ऑफ 7.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड लेना है. इस तीनों को प्रॉपरली अंडर द हीट रिफ्लक्स करना है विथ बाय पुटिंग इनटू द रिफ्लक्स कंडेंसर, जब तक कि पूरा सिस्टम, पूरा आपका तीनों इंग्रेडिएंट कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए. आफ्टर कंप्लीट डिसोल्यूशन allow it to cool, separate the aqueous layer and shake the ether layer with 2 quantities. इसमें जैसे ईथर भी हमने डाला हुआ है, तो एक्वस और ईथर लेयर 2 लेयर में सेपरेट हो जाएगा. दोनों लेयर में, दोनों ही लेयर आपने सेपरेट करके उस दोनों में 4 ml ऑफ डिस्टिल वाटर डाला. दोनों में ही ईच ऑफ द लेयर्स वी ऐड 4 ml ऑफ डिस्टिल वाटर. फाइनली इसकी वॉशिंग करते रहना है हमको विथ ईथर, 15 ml ऑफ ईथर. हीट करेंगे. हीट वाटर बात पे करने पर ईथर आपका इवोपरेट होता चला जाएगा, और हमको तब तक हीट करना है जब तक कि पूरा का पूरा ईथर इवोपरेट ना हो जाए. पूरा ईथर जब इवोपरेट हो जाएगा तो अलाउ इट टू कूल एंड डाइल्यूट विथ 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर. यू विल गेट अ सोल्यूशन. इस सोल्यूशन का नाम हमने सोल्यूशन ए रखा है बिकॉज दिस इज यूज्ड to identify the presence of zinc salts. This solution A is used to identify the presence of zinc salts in next step. Then evaporate all the ether layer. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इवोपरेट करने के बाद इसको प्रॉपरली ड्राई कर रहे हैं at 105 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यू विल गेट द फ्रीजिंग पॉइंट. इस पे हमें समझ में आ जाएगा कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये फ्रीज कर रहा है. इफ इट इज अ प्योर जिंक स्टेरेट इट विल फ्रीज at around 53 डिग्री सेंटीग्रेड. इससे कम टेम्परेचर पर ये फ्रीज नहीं होगा. तो फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एंड फाइनली 53 डिग्री सेंटीग्रेड इज द कैरेक्टरिस्टिक. फ्रीजिंग पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिंक स्टेरेट. तो यही फ्रीजिंग पॉइंट हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया. सेकेंड इज जो सोल्यूशन ए बना, उस सोल्यूशन ए को हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके रेड लिटमस पेपर के अगेंस्ट न्यूट्रलाइज करना है. इट मीन्स उसकी एसिडिटी अगर है कुछ तो NaOH डाल के उसको न्यूट्रलाइज करना है. अब ये सोल्यूशन जो है जिंक सॉल्ट के सारे टेस्ट, जो अपनी केमिस्ट्री में जिंक के टेस्ट पढ़े हैं, वो जिंक सॉल्ट के सारे टेस्ट देगा. Where zinc stearate is used, obviously it contains zinc. It is used as an astringent. It is used as an antimicrobial agents. Dermatological preparations में protective purpose के लिए और along with the dusting powder जिसमें ये lubricant का भी काम कर रहा है, जिंक स्टेरेट यूज होता है. टैबलेट बनाते वक्त एज ए lubricant भी जिंक स्टेरेट एंड I'll add मैग्नीशियम स्टेरेट, दोनों ही सॉल्ट्स यूज होते हैं. Now the next example is calamine. We all are aware about the lactocalamine lotion जो स्किन pH बैलेंस करने के लिए या प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यूज हो रहा है. क्या है कैलामाइन? कैलामाइन BP और कैलामाइन IP. BP ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड IP इंडियन फार्माकोपिया, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है. कैलामाइन BP कहता है कि कैलामाइन इज बेसिक जिंक कार्बोनेट suitably colored with ferric oxide.
क्या कह रहा है कैलामाइन बीपी? इट इज बेसिक मींस alkaline जिंक कार्बोनेट suitably colored with ferric oxide. Calamine IP says zinc oxide, it's not zinc carbonate, it's zinc oxide colored with ferric oxide. रेड कलर, रेडिश पिंकिश कलर का होगा आपका कैलामाइन. It is an amorphous reddish brown powder and the color depends on the variety or amount of ferric oxide. Ferric oxide का सोर्स क्या है, कितना हमने डाला है, उस पर डिपेंड करता है कि कलर क्या है इसका और किस मेथड से डाला है. द मेथड बाय विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड इज आल्सो अफेक्ट्स द कलर. It is practically insoluble in water and completely soluble in mineral acid. Since there is a possibility of adulteration with the dye, they are tested for water-soluble dyes and alcohol-soluble dyes to identify calamine, to identify the purity of calamine. Commercially हम इसको बनाते कैसे हैं? On commercial scale, zinc oxide is needed to prepare calamine. जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट दोनों को हीट करना है. कैलामाइन विल बी प्रिपेयर्ड बाय थॉरोली मिक्सिंग जिंक ऑक्साइड विथ फेरिक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड या जिंक कार्बोनेट इनको हीट करके प्रॉपर मिक्स करके हम कैलामाइन ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैलामाइन विच इज गिवन हियर. 1 gram of calamine at 10 ml of dilute hydrochloric acid, heat to boiling and filter. कैलामाइन उसमें HCl हमने डाला, दोनों को हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि बॉयल होने लगे, फाइनली फिल्टर करते हैं. फिल्ट्रेट में व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट अ रेडिश कलर विल बी प्रिपेयर्ड. हीट करने के बाद फिल्टर करो. फिल्ट्रेट में जैसे ही हम अमोनियम थायोसाइनेट थोड़ा सा एक दो पिंच ही डालेंगे तो रेडिश कलर विल बी प्रिपेयर्ड. सेकेंड इज शेक 1 gram of calamine with 10 ml of dilute hydrochloric acid and filter it. The filtrate, उस फिल्ट्रेट में to add 0.2 ml of sodium hydroxide solution, a white precipitate will be produced. To this, further add 2 ml of sodium hydroxide solution, the precipitate will dissolve. Finally, add 10 ml of ammonium chloride solution, it remains clear, and when we add sodium sulfite, a flocculated white precipitate is produced. आपको शायद याद आया हो, the same test was performed to identify zinc oxide, and obviously I told you here also zinc carbonate या zinc oxide ही ले रहे हैं. तो ये जो सेकेंड टेस्ट है आपका वो सेम है, जो जिंक की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए है, वो था सेम. थर्ड वन इज डिसॉल्व 0.1 gram ऑफ कैलामाइन इन 5 ml ऑफ वाटर. उसको H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से एसिडिफाई करना है. कुछ ड्रॉप्स हमें क्यूप्रिक सल्फेट के डालने हैं एंड 2 ml ऑफ अमोनियम मर्क्यूरी थायोसाइनेट. A violet precipitate will be formed. This is also the same test which we have read in zinc oxide. The last one is dissolve 0.1 gram of calamine in 5 ml of water. To this add 2 ml of potassium ferrocyanide solution. A white precipitate will be produced which is insoluble in dilute hydrochloric acid. Now, purity test. It is tested for the substance such as acid insoluble. कितने सब्सटेंस एसिड में इनसॉल्युबल हैं, कितने अल्कलाइन सब्सटेंस है, आर्सेनिक कंटेंट कितना है, कैल्शियम कंटेंट कितना है, मैग्नीशियम कंटेंट कितना है, लेड कंटेंट, लॉस ऑन ड्राइंग, लॉस ऑन इग्निशन, एंड all test is done as per the Indian Pharmacopoeia 2007. Store in a well closed container. The uses, it again it contains zinc oxide. तो जितने भी uses आपके zinc oxide के थे वो सारे uses आपके calamine के भी हैं. Like it is used as an astringent, antiseptic, protective, soothing effect दे रहा है ये, क्योंकि ये zinc oxide के आपका zinc oxide present है और जिंक कार्बोनेट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका मिक्सचर बन रहा है. सूदिंग इफेक्ट देगा. एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं. It is used as a common ingredient in preparation of ointments and solutions or for sunscreen or sunburn preparations. Part 2 of topical agent is completed here. I'll share soon part 3 and the last part of topical agents. Thank you all.